بھائی ہاں یہ اپنا علاج بدل نہیں گیا ہے؟ صحیح میں بھی بڑا حیران ہوں. میں نے بھی بار بار بدلتے ہوئے پہلی بار کسی کو دیکھا. صحیح پہلے یہ سر جھکا کر بیٹھتا تھا, اب نظر اٹھا کر بیٹھتا ہے. لیکن صحیح نظریں اچھی ہے اس کی. اس میں تڑپ ہے, تلاش ہے, کسی کو ڈھونڈنا ہے. کام سے بھی بچتا ہے, شاید ٹھیا چھوڑنا نہیں چاہتا. اب تو پھر نظر جھکا کر بیٹھنے لگا ہے, جیسے اسے وہ مل گیا ہو جسے یہ ڈھونڈ رہا ہوں. استاد میں تمہاری نظر کا قائل ہوں. ہاں صحیح میں نے ساری زندگی فٹ پاتھ اور سڑکوں پہ گزاری. یہ جو 12-14 جماعت پاس لوگ ہیں نا, ان سے زیادہ تجربہ ہے میرا. بندہ فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے ہی سب کچھ سیکھتا اور سمجھتا ہے. یہ خوشی اور غم سے واقفیت ہوتی ہے. کچھ خود پر گزرتی ہے اور کچھ دوسروں کو دیکھ کر سیکھتا ہے. سمجھ گئے نا صحیح؟ سر بھائی ایک بات بتاؤں, یہ الہی بیچ ابھی پہلے جیسا ہو گیا ہے. نہیں سر, تم دیکھ رہے ہو یہ کتنا کمزور ہو گیا. اس کی جان کو عشق کھا گیا ہے. یہ بھوک کی کمزوری ہے. نہیں نثار بھائی, یہ بات میں نہیں مانوں گا. بھوک کی وجہ سے کمزور ہوا؟ نہیں نہیں نہیں, آپ نے اس کی کس سے کیا ہو تو پتا ہو نا آپ کو. یہ بہت مروت والا اور خوددار آدمی ہے. تمہیں یاد ہے کہ استاد قاسم کے آخری دن ہم نے اس کو مزدوری میں سے حصہ دینا چاہا تھا. یہ لے نہیں رہا تھا, لیکن ہم لوگوں کا دل رکھنے کے لیے اس نے پیسے لے لیے تھے. ارے ہاں نثار بھائی, مجھے یاد آ گیا. وہی, وہ پیسے تو اس نے لے لیے تھے, لیکن اندر سے یہ تڑپتا رہا. نثار بھائی, اس کو کام بہت دنوں سے نہیں ملا ہے. ارے صحیح کام کیسے ملیں گا؟ پہلے یہ کام کو ٹالتا تھا, اب کام اس کو ٹالتا ہے. اسی لیے کہہ رہا ہوں وہ بھوکا ہے. تو ایک کام کرو صاحب, آپ چل کے اسے پوچھ لیں. نہیں نہیں نہیں, ایسے لوگوں کی مدد کرنا اور پوچھنا ذرا مشکل کام ہے. صحیح میں کوئی ترکیب لڑاتا ہوں, پھر دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے استاد. بخش, کیا بات ہے, تو بڑا خاموش خاموش ہے. نہیں صاحب بھائی, کچھ نہیں ہے. تو بیٹا مجھے اس سے بات کرنی ہے, تو ذرا ہو کے آتے ہیں. ٹھیک ہے. میں تجھ سے بات کرنا چاہ رہا تھا, مخیل تو نہیں ہوگا؟ نہیں صاحب بھائی, ایسی تو کوئی بات نہیں, آپ بات کریں. دراصل میں یار سوچ رہا تھا کہ یہ آج کل تو جلدی گھر چلا جاتا ہے, سیدھا گھر پہ دل لگ جاتا ہے. ہاں صاحب بھائی, آج کل پڑھنے میں دل لگنے لگا ہے. تو یہ بات ہے. دراصل یار میں سوچ رہا تھا کہ آج کھانا تیرے ساتھ کھاؤں. ہاں کیوں نہیں صاحب بھائی, ضرور. لیکن ابھی تو بہت وقت پڑا ہے. اس کے علاوہ بھی ایک اور کام تھا یار, دیکھنا اب سوال تو اپنوں سے کیا جاتا ہے نا. ظاہر ہے میں تجھے اپنا ہی سمجھتا ہوں, اور تجھے بھی ظاہر ہے کبھی کوئی ضرورت پڑے گی تو تم میرے سے ہی سوال کرے گا. ویسے بھی ہم بھائیوں جیسے تو ہیں. ہاں صاحب بھائی, میں بھی آپ کو بڑا بھائی سمجھتا ہوں. آپ بولے نا, کیا بات ہے, بولے. دراصل مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے, اور ظاہر ہے کہ میں تجھ سے ہی مانگ سکتا ہوں, اور جب تجھے ضرورت پڑے گی تو تم مجھ سے ہی مانگ سکتا ہے. کیا کہوں صاحب بھائی, نہ جانے کتنے دنوں سے میری جیب خالی ہے. فکر میں کریں, اللہ مالک ہے. تو
तू गुजारा कैसे कर रहा है? तूने तो खैरियत की इंतहा कर दी। मैं किसी से क्या कहता, यहाँ फुटपाथ पे तो हम सबका एक ही जैसा हाल होता है, लेकिन आदमी एक दूसरे से सवाल तो कर सकता है। हाँ, लेकिन निसार भाई यार, अक्षय अगर पड़ोसी भूखा हो ना तो अल्लाह दूसरे पड़ोसी से जवाब तलब कर लेता है। मुझे शर्मिंदा कर दिया यार। नहीं 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 निसार भाई, आप क्यों शर्मिंदा हो रहे हैं? हाँ? शर्मिंदगी तो मुझे हो रही है। ठीक है, कुछ करता हूं अपने लिए भी और तेरे लिए भी। आता हूं। लाई वक्त शुक्र है तुम मिल गए। इस बार पूरे बंगले का काम है। ठीक है साहब जी, ठीक है, शुक्र है। तो चलो। हाँ साहब जी, एक बात कहना थी, बुरा तो नहीं मानेंगे आप? हाँ हाँ कहो, क्या बात है? वो 200 रुपए अगर पेशगी मिल जाते तो। 200 रुपए? जी सर। हाँ हाँ क्यों नहीं। आप यहीं ठहरे, मैं अभी आता हूँ। भाई काम मिल गया मुझे, मैं जा रहा हूँ। वाह 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 वाह, ये रखें, ठीक है, खुदा। अगर इसे मदद मांगना सिखाना है तो इसकी मदद कबूल कर इंसान। बेशक ये पैसे कल वापस कर दे, और जिता भी देना कि भाई की मदद भाई करता है। क्या बात है, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है, बस इन्हें काम थक गया हूँ। वो अपनी हाजिर आई थी आज, इलाही बख्श का पूछ रही थी कि कोई खत वत आया कि नहीं। पता करो ना कि क्या बात है। हाँ समझ में नहीं आता, बहुत दिन हो गए हैं, हम तक आ जाना चाहिए था। चाहिए तो बहुत कुछ, पर तुझे कुछ फिक्र हो तब ना, हर बात की फिक्र बस मुझे ही है, इसलिए कि मैं माँ हूं ना। हाँ मुझे फिक्र नहीं है, इसलिए कि मैं बाप हूं, मेरे अंदर नहीं, मुझे बहुत फिक्र है उसकी। और तुम ये माँ क्यों समझ लेती हो कि औलाद से सिर्फ माँ को ही प्यार होता है, बाप को भी बहुत प्यार होता है।
पर वो बोलता नहीं है। जब तू ही नहीं समझती तो समझने की बात है तो तेरी औलाद क्या समझेगी? चाहते किधर हो? खाना तो खाते जाओ ना। मैं तुझसे वादा करता हूं, तेरी राजा काम कभी गुलाम का काम मिला था मुझे। हाँ, तू ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। ओहो, तुम बहुत मनमानी करती हो शादी। डॉक्टर आएगा देख लेगा। डॉक्टर बनने की कोशिश मत करो। मम्मा आप भी कमाल करती हो। जख्म से खून बह रहा है, वो साफ कर रही हूँ। अच्छा जो जी में आए वो करो। तुम क्या फील कर रहे हो? जी यहाँ तो बहुत शदीद है। लो डॉक्टर भी आ गया, चलो उठो। अस्सलाम वालेकुम। दर्द हो रहा है आपको? जी हाँ। क्या महसूस हो रहा है? बहुत शदीद दर्द हो रहा है। परेशानी की कोई बात नहीं बेगम साहबा। सर की अंदरूनी चोटें खतरनाक साबित हो सकती हैं। मैं दवाएं भिजवा देता हूँ, मरीज को आराम की ज़रूरत है। और हाँ बेगम साहबा, पेशेंट वार्मिट महसूस करे तो मुझे कॉल कर लीजिए, ज़रूरी है। ओके डॉक्टर साहब। कर्मो, डॉक्टर साहब को छोड़कर दवाइयाँ लेते आना। ठीक है, खुदा खुदा। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? इलाही बख्श। कहाँ रहते हो? आजम बस्ती में। आजम बस्ती? ये कहाँ पर? खैर, होगी कहीं। ये बताओ कि माँ बाप के साथ रहते हो? नहीं जी, वो तो एबटाबाद में रहते हैं। मैं यहाँ अकेला हूँ। यह और भी अच्छा है, तुम्हें कल तक यहाँ रुकना होगा। अच्छा है कि तुम्हारा कोई पूछने वाला नहीं। तुम करते क्या हो? जी मैं रंग रोगन का काम करता हूँ। यहाँ तारिक रोड फुटपाथ पर बैठता हूँ। हाँ रोमांटिक। ठीक कहती हैं आप। जिंदगी तो खुद एक बहुत रोमांटिक चीज है। पढ़े लिखे मालूम होते हो। मैट्रिक के बाद जिंदगी की रोमांवित को खोजने निकला। चलो भी शादी, हर किसी से बातें करने खड़ी हो जाती हूँ। इलाही बख्श, कर्मू चाचा तुम्हारा ख्याल रखेंगे। अगर वॉमिट फील करो तो कर्मू चाचा को बता देना, ठीक है? क्या हो रहा है मेरे साथ? ये कैसा इश्क है? किसी को
बता भी नहीं सकता मैं। तो फैल ये लाई बख्श कहाँ चला गया? अल्लाह खैर करे, सुबह से गया है अभी तक आया ही नहीं। मैं निसार भाई को बताता हूँ। जा जल्दी आना। निसार भाई, क्या बात है? वो बख्शा दोपहर से खाना खाने गया था, अभी तक आया ही नहीं। क्या अभी तक आया ही नहीं? नहीं उस्ताद, अच्छा, घर क्या हुआ अपने? उसका सारा सामान भी यहाँ पड़ा है। ओ यार, वो मनमौजी आदमी है। मैं भी घर जाऊंगा उसके, देख लेता हूँ। तुम एक काम करो, उसका सामान उठा के ना वहाँ चौकीदार को दे दो, ठीक है? यार भाई, यार अल्लाह खैर करे, ऐसा कभी पहले कभी नहीं हुआ यार। यार अल्लाह से खैर की उम्मीद रखा करो ना। मैं जा रहा हूँ ना घर अभी, चल। तू रहने वाला किधर का है पुत्र? उधर किधर रहता है? मेरे मकबूल है एबटाबाद में। वतन के। और तू क्या कहाँ रहता है? मैं भी उधर का हूँ, शेखा बांडी का। तेरे पियो का क्या नाम है? पीर बख्श। पीर बख्श काम क्या करता है? तू पीर बख्श रंगसाज का पुत्र है? वो तो मेरे बचपन का संगी है। तुझको भी मैंने निकिया होना देखा था पुत्र। तेरा पियो बंदा बड़ा अच्छा है। निकिया होने जब मेरे साथ होता था तो मैं बड़ा शरारती था, हमेशा तेरे पियो को फंसा देता था। लेकिन तुम्हारा पियो बड़ा ही नेक बंदा है, अल्लाह रसूल का आशिक, शाजी होने का जानिसार। हाँ, ये तो है चाचा। अब कैसा है पीरू? पहले जैसे ही है। मैं तेरे पियो को हाथ लिखूंगा, उसको बताऊंगा कि तेरे सोने पुत्र ने मेरी जान बचाई। तेरे साथ तो बच्चा भी तो था, अजहर बाबा। वो मेरे साहब का इकलौता पुत्र है, बड़ा ही लाडला है। बस साहब उनके दो ही बच्चे हैं, एक अजहर बाबा और एक सादिया बीबी। चोट तो नहीं लगी? खराश तक नहीं आई। अगर तू ना होता ना पुत्र तो बच्चे का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। अजहर बाबा बड़ी मनतों मुरादों का बच्चा है। तू नहीं जानता पुत्र कि तूने कितना बड़ा एहसान किया इन लोगों पर। नहीं चाचा, एहसान करने वाली तो अल्लाह की जात है। वो तो है, पर ये किसी का एहसान नहीं रखते पुत्र। बेगम साहब तो ऐसी बात करेंगे जैसे मैं कोई उनकी मुसीबत या बोझ बन गया। वो तो ऐसे ही है, हम जैसे लोगों को बंदा ही नहीं समझते। लेकिन साहब और बच्चे बहुत अच्छे हैं, बड़ी इज्जत करते हैं। बेगम साहबा को शायद दौलत का घमंड है, वो हमेशा नौकरों के साथ ऐसे ही करती है। फिर मैं नौकर तो नहीं उनका। तो पुत्र छोड़ नंगा साहब आवे तो फिर देखा। चाचा, तुम यहाँ क्या करते हो? मैं इधर माली का काम करता हूँ, घर का सौदा वगैरह भी लाता हूँ। बच्चे बुलाते हैं पुत्र, लेकिन साहब लोग छोड़ते ही नहीं हैं। फिर सो गए। अस्सलामुअलैकुम पापा। वालेकुम सलाम। बेटी, तुम मुझे देखकर इतना चौंकी क्यों? पापा आपने तो देर से आना था। अगर हम जल्दी आ गए हैं और तुम्हें मायूसी हुई है तो हम वापस चले जाएं। नहीं पापा, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली हम लोगों ने खाना खा लिया था। वो आपके लिए खाना लगवाओ? नहीं बेटे, ऐसे करो, तुम चाय पिलवाओ मुझे, मैं चेंज करके आता हूँ। ठीक है पापा। जमीला, पापा के लिए चाय लाओ। बैठो बेटा। चाय पापा। थैंक यू बेटा। अजहर कहाँ है?
पापा वो सो रहा है, डॉक्टर ने उसे ट्रैंकुलाइजर दिया था। डॉक्टर ट्रैंकुलाइजर? व्हाट्स हैपनिंग? क्या हुआ? हाँ पापा, वो मामा ने आपको नहीं बताया? क्या नहीं बताया? कमाल कर दिया मामा ने, आपसे फोन पर बात हुई और आपको नहीं बताया। भाई क्या नहीं बताया? बात क्या है? तुम तो कुछ कहो। वो पापा, अजहर एक हादसे में बाल बाल बच गया। पापा पापा, परेशानी की कोई बात नहीं है, आप आराम से बैठे। अच्छा खूब। हादसा? कोई परेशानी की बात नहीं है? पापा अजहर को खराश तक नहीं आई, इस वक्त वो सो रहा है, सुबह आप उससे मिल लीजिएगा। ये बेटा तुम मुझे तसल्ली तो नहीं पापा, अगर अजहर को कुछ होता तो मैं आपको यहाँ सुकून से बैठी मिलती। हुआ क्या था? पापा तफसील तो मुझे नहीं मालूम, करमू चाचा ही आपको बता सकते हैं। हाँ, एक अजनबी अजहर को बचाते हुए जख्मी हो गया। उसे भी तुम्हारी मम्मी ने कुछ एहसान करके निकाल दिया होगा। मामा का इरादा तो यही था, लेकिन मैंने रोक दिया। वो इस वक्त करमू चाचा के क्वार्टर में है। तुम मेरी बहुत प्यारी बेटी हो, गैरों का भी इतना ख्याल रखती हो। मैं उसे देख कर आता हूँ। पापा मैं जमीला को भेज के उसको यहीं बुला लेती हूँ। नहीं बेटे, बुरी बात है, मुझे खुद जाना चाहिए। मामा और पापा इतने मुख्तलिफ क्यों हैं एक दूसरे से? ऐसा क्यों होता है? दो अफराद जिन्हें एक दूसरे के साथ पूरी जिंदगी गुजारनी होती है, एक दूसरे के बरक्स क्यों होते हैं? लगता है मेरे साथ भी यही होगा। मुझे खौफ आने लगा है शादी से। ARY Digital, the family channel. मैं वो सबने समीम
किया पहली बारिश भेजने वाले मैं तेरे दर्शन का प्यासा था। लाई बख्श बिल्कुल बदल गया है, लगता है उसको इश्क हो गया। हम लोग भी यही कहते हैं। न जाने कितने दिनों से मेरी जेब खाली है। फिक्र न करें, अल्लाह मालिक है। तो गुजारा कैसे कर रहा है? तूने तो खैरियत की इंतहा कर दी। और आज सिर्फ माँ को ही प्यार होता है, बाप को भी बहुत प्यार होता है, पर वो भूलता नहीं है। अच्छा है कि तुम्हारा कोई पूछने वाला नहीं। तुम करते क्या हो? जी, रंग रोगन का काम करता हूँ। हाँ, एक अजनबी अजहर को बचाते हुए जख्मी हो गया। उसे भी तुम्हारी मम्मी ने कुछ एहसान करके निकाल दिया होगा। मामा का इरादा तो यही था, लेकिन मैंने रोक दिया। वो इस वक्त कैमू चाचा के क्वार्टर में है। इधर भी नहीं है यार। जिना अस्पताल में भी ढूंढ लिया, काशी शहीद अस्पताल में भी ढूंढ लिया, कहीं भी नहीं मिला। क्या करें क्या करें क्या करें, क्या करामत। हाँ, चल सिविल अस्पताल चलते हैं, वहां देखते हैं। चलते हाँ उधर चल चल। इतना बड़ा हादसा और तुमने टेलीफोन तक पर इत्तला नहीं दी मुझे। कोई ऐसी बात नहीं, कुछ हुआ भी तो नहीं था। क्या बता दूं? तुम्हारे लिए हादसा तब संगीन होता जब कोई मर जाता। आप बिलावजा बाग का पतंगड़ बना रहे हैं। और मैं ये काफी अरसे से देख रहा हूं कि इस घर को रंग रोगन की सख्त जरूरत है। आप साफ क्यों नहीं कहते कि उस फुटपाथी रंगसाज का एहसान चुकाएंगे? रोजी के लिए फुटपाथ पर बैठना कोई बुरी बात नहीं, रंगसाजी कोई जुर्म नहीं, और एहसान का बदला एहसान अल्लाह का हुक्म है। एहसान कैसा? बस जरा सी खराशें आई है और क्या? खुदा न खास्ता वो मर जाता या अपाहज हो जाता, तब आप उसका एहसान मानती। और ये भी सुन ले कि ये एहसान का सिला नहीं है। वो काम करेगा और अपनी उजरत लेगा। एहसान कोई भी किसी का नहीं उतार सकता। जो जी में आता है वो करें, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं। मेरा ख्याल है छोटे लोगों को जरा सी बात पर सर पर बिठा लेना छोटापनी है, और आप इसे बड़ाई समझते हैं।
चाचा अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब मैं चलता हूँ। ना पुत्र, साहब से मिले बगैर तो नहीं जा सकता। साहब अगर 1 महीना मुझे नहीं मिलेंगे तो मैं यहीं पड़ा रहूंगा। वो तो रात को आए थे, क्यों सो रहा था? तो जगा देना था चाचा मुझे। उन्होंने जगाने ही नहीं दिया, लेकिन आज शाम को वो जल्दी आएंगे, फिर से जरूर मिलेंगे। अच्छा ठीक है, मगर चाचा मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है, मैं वापस आ जाऊंगा। देख पुत्र, वापस आ जाना। तू अगर साहब से मिले बगैर चला गया ना तो मेरी बड़ी बेइज्जती होगी। चाचा तुम मेरी बाप की तरफ से, मैं भला तुम्हारी बेइज्जती कैसे करा सकता हूँ? मगर तुम जा किधर रहे हो? तो चाचा जिनके साथ मैं रहता हूँ, फुटपाथ पे जिनके साथ बैठता हूँ, वो लोग परेशान होंगे। मैं उनसे जाके मिलूंगा, उनको पता चलेगा कि मैं खैरियत से हूँ। ठीक है जा। ये तो बिल्कुल फिल्मी कहानी हो गया। मगर बख्शे, तूने हम लोगों को सताया बहुत है। हाँ यार, सारी रात तुझे अस्पतालों में तलाश करते रहे यार, बड़ा दिल परेशान हुआ है। निसार भाई मैं बहुत मजबूर था, वरना रात को ही आ जाता मैं। ओ यार, हम कोई शिकायत थोड़ी कर रहे हैं। तुमको देखा सुकून हो गया, अब हम काम पे चलते हैं अल्लाह के फजल से। मजा तो जब आए जब तुझे उस बंगले में नौकरी मिल जाए। क्या बात कर रहे हैं निसार भाई? ये जो फुटपाथ है ना, इसे मैं नहीं छोड़ सकता। है? ओ यार बेवकूफ, ये भी कोई जिंदगी है? यार पगार की तो बात ही कुछ और है। पहली आई और रकम हाथ में आई। निसार भाई, ये फुटपाथ किसी को बहुत रोमांटिक लगती है। लगता है तू कुछ किताबें ज्यादा पढ़ने लग गया है। बख्शे भाई, उधर छोकरी तो होगी ना? क्या बात कर रहे हो? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस यार मैं ऐसे बोल देता हूँ। मुझे ऐसा समझते हो तुम? क्यों बदतमीजी कर रहा तू है? अबे तू हर एक को अपने जैसा समझता है। दिल में खुश होता है छोकरी के लिए और इधर डांटता है हमको। हाँ भाई, तो वही जाएगा। हाँ निसार भाई, वो जाना जरूरी है इसलिए कि मैंने करमू चाचा से भी वादा किया था, और साहब से मिले बगैर मैं उस जगह को छोड़ नहीं सकता। हाँ कोई बात नहीं। बल्कि मैं तो ये कहूंगा अगर मौका लगे ना तो उधर ही फिट हो जाना। बख्शे भाई, इधर क्या है, 1 दिन मजदूरी करो और 4 दिन और बेकार बैठा रहो और 2 दिन और फाका काटो। यार ये भी कोई जिंदगी है? कैसी तबीयत है तुम्हारी? जी बेबी, अब तो मैं ठीक हूँ। मैं तो अभी बाहर घूम कर आया हूँ। ओह गुड। जो तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। मेरा नाम सादिया है, घर में सब मुझे सादी कहते हैं। जी मुझे मालूम है जी। तुम भी मुझे सादी कह सकते हो। दीदी, मैं तो उतना पंछी हूँ जो थक कर पल 2 पल के लिए यहाँ उतर गया था। मुझे तो उड़ जाना है। जमीला, जमीला, जी साहब। करमू को कहो कि इलाही बख्श को लेकर आए।
इलाही बख्श, आओ बैठो यहाँ। मैं और जाऊं सर? हाँ करमू, तुम जाओ। अरे तुम अभी तक खड़े हो, बैठो आराम से। नहीं साहब जी, मैं ठीक हूँ। तुम मेरी बात नहीं समझ रहे इलाही बख्श। इस वक्त तुम मेरे मेहमान हो। Sit down my son. आराम से बैठो। जी। देखो इलाही बख्श, जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में होती है, मगर अल्लाह जिस वसीले से मदद करे उस वसीले का एहतराम भी जरूरी है। दरअसल ये एहतराम अल्लाह ही के लिए होता है। मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। तुमने मेरे बेटे और करमू को नई जिंदगी दी है। बदले में मैं कुछ नहीं कर सकता, मगर तुम्हें इज्जत तो दे सकता हूं। कितने अच्छे आदमी, एहसान पर जोर देकर मुझे शर्मिंदा भी नहीं किया। मेरा नाम शेख मजहर अली है। साहब जी तो मेरे मुलाजिम ही सिर्फ मुझे कहते हैं। मेरा नाम सादिया है, घर में सब मुझे शादी करती है। अब तुम कैसे हो इलाही बख्श? जी मैं ठीक हूँ जी। अब मैं जाना चाहता हूँ जी। मैं तो चाहता था कि कुछ देर और हमें मेजबानी का मौका दो, लेकिन जबरदस्ती अच्छी नहीं है। तुम मेरे पाबंद नहीं हो, जब जी चाहे चले जाना। साहब जी, अब मुझे इजाजत? ठीक है, मगर एक बात का ख्याल रखो, इस घर को हमेशा अपना घर समझना। जब भी जरूरत पड़े, जो भी कोई काम हो, कभी भी किसी वक्त तुम चले आना। कल हो या 10 साल बाद, मैं तुमको भूलूंगा नहीं। हमेशा मुझे अपना बुजुर्ग समझना। मैं ये बात हमेशा याद रखूंगा जी। इलाही बख्श, जरा 5 मिनट बैठो। वैसे तो जो मुझे कहना था मैं कह चुका, लेकिन क्यों ना तुमसे एक कारोबारी बात की जाए। कारोबारी बात? पूरे 6 महीने से सोच रहा हूं कि इस घर को रंग रोगन कराऊं। अब तुम नेमत की तरह आ ही गए हो, तो क्यों ना तुमसे कुछ फायदा उठाया जाए। ये एहसान का सिला है, लेकिन ऐसे शख्स से क्या कहा जाए जो पहले ही कह चुका है कि असल एहसान तो अल्लाह का है। इन दीवारों को देखो और इंसाफ से कहो कि मौजूदा पेंट जो है वो क्या इनके शाया निशान है, और ये बताओ कि रंग रोगन होने के बाद ये कैसा लगेगा। ये तो खैरात भी पढ़ लेते हैं इलाही बख्श, जवाब जरा सोच कर देना। ये आप दुरुस्त फरमाते हैं। इन दीवारों को अगर पेंट की जरूरत है तो आप ठीक कहते हैं। आओ फिर तुम्हें घर दिखाता हूं। कम ऑन सन। और ये है शादी का कमरा। ये बराबर में हमारा बेडरूम है। अच्छा, अपनी उजरत बताओ। नहीं, शर्माने वाली बात नहीं, ये तो एक कारोबारी मामला है।
तुम्हारे हमारे पर्सनल ताल्लुकात से बिल्कुल अलग। उजरत ना ज्यादा दूंगा ना कम, जितनी बनेगी उतनी तुम लोगे। जी सर, आप काम दिहाड़ी पर करवाएंगे या ठेके पर? दिहाड़ी पर। जी, दिहाड़ी 200 रुपये रोजाना होगी। माल आपका होगा। फिलहाल ये 2000 रुपए हैं। जरूरत का सामान तुम ले आओ, मजीद जरूरत पड़े तो बेगम साहिबा से ले लेना। जी बेहतर। वैसे सर मैं कल कार्ड ले आऊंगा, आप अपनी पसंद का कलर देख लीजिएगा। जो इन दीवारों पे कलर है वो सेम होगा, मगर किसी अच्छी कंपनी से पेंट ले लेना। पिछली बार रंग करने वाले ने मुझे मायूस किया था। आई होप कि तुम मुझे खुश करोगे। जी सर, जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी है, लेकिन मैं इंशाल्लाह आपको मायूस नहीं करूंगा। इलाही बख्श, मैं सोच रहा हूं कि तुम जैसे आदमी के लिए तो एबटाबाद में भी काम की कमी नहीं होगी। फिर तुम कराची क्यों चले आए? ठीक है, तुम बताना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। बुरा न माने तो काम खत्म होने के बाद आपको बताऊंगा, बशर्ते कि आप उस वक्त जानना चाहें तो। ठीक है इलाही बख्श, मैं इंतजार करूंगा। आओ चाय पियो। दरअसल बात यह है इलाही बख्श के हिसाब किताब के मामले में मैं बहुत सख्त आदमी हूं। दूसरों की भलाई करने वाले ऐसे ही होते हैं। क्या मतलब? तो ये बंदे अगर यहाँ हिसाब सख्त ले लें तो ऊपर का हिसाब आसान हो जाता है। मगर इलाही बख्श, पेंट का डिब्बा इस कीमत में तो नहीं मिलता। लेकिन सर मैं इससे कम तो कहीं से भी नहीं ला सकता सर। नहीं नहीं, तुम मेरा मतलब नहीं समझे। मैंने किसी और से मंगवाया था एक बार, तो वो तो 620 रुपए का मिल रहा था और तुम सिर्फ 600 रुपए में लाए हो। सर वो मैं एक खास दुकान से लेता हूँ जी, वो मुझे हमेशा कंसेशन देता है। इलाही बख्श, मैं एक कारोबारी आदमी हूं, नुकसान का सौदा कभी नहीं करता। ईमानदार आदमी को मैं पहचानता हूं और उसको अपना बनाता हूं। है ना खुद गर्जी वाली बात? मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए काम करो। रान करने वाले को मुलाजिम रखकर आपको क्या फायदा होगा सर? मैं इस हैसियत से तुम्हें मुलाजमत ऑफर नहीं कर रहा। ड्राइविंग आती है तुम्हें? जी सर, लाइसेंस भी है जी मेरे पास। मैं तुम्हें ड्राइवर रखना चाहता हूं। मुझ पे तो एहसान होगा सर। मैं तुम्हें 3000 रुपए माहवार तनख्वाह दूंगा। इसके अलावा खाना घर से मिलेगा और क्वार्टर भी। तुम्हें सिर्फ शादी की गाड़ी ड्राइव करनी होगी। मंजूर है? मैं और शादी की गाड़ी, ऐसी कोई इतना बड़ा एजाज
قسمت میرے ساتھ کیا کھیل کھیل رہی ہے، کہاں پہنچا دیا مجھے اور کہاں تک لے جایا جائے گا۔ بنا شکر ادا کر رب کا، یہ سب تو تیرے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا۔ بھائی 3,500 دے دوں گا تمہیں، اس سے زیادہ میں بالکل نہیں دے سکتا۔ نہیں سنتا، آپ غلط سمجھے ہیں سر، یہ تنخواہ تو میری سوچ سے بھی زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، پھر تم کل آ جاؤ، سادی کی گاڑی بھی آ جائے گی اور میں تمہاری ٹرائی بھی لے لوں گا۔ ٹھیک ہے سر۔ کل کرمو تمہیں تمہارا کوارٹر دکھا دے گا، وہاں ضرورت کی ہر چیز موجود ہے۔ اپنا وعدہ پورا نہیں کرو گے؟ وعدہ؟ میں یاد دلاتا ہوں وہ وعدہ۔ کون سی مجبوری تمہیں کراچی کھینچ لائی؟ سر میں ایسا کوئی وعدہ نہیں کرتا جو میں پورا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ کہیں آپ کا وقت ضائع نہ ہو۔ تم سناؤ؟ بڑی ایمانداری سے کام کرتا تھا، ہر طرح سے سچائی کے ساتھ، لیکن انہوں نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ یہ ہے میری کہانی سر، ایمانداری کا صلہ، فیصلہ آپ خود کر لیں سر۔ فیصلہ تو ہو چکا، اب تم جاؤ، کل صبح ملاقات ہوگی۔ جی ٹھیک ہے۔ وعلیکم السلام۔ آ گئے؟ میں تو یہ سوچ کر چپ ہو گئی تھی کہ چلو رنگ روگن پر بات ختم ہو جائے گی، مگر آپ کو تو انوکھی سوچی۔ اللہ جانے آپ کو کیا ہوا کہ ایک فٹ پاتھی رنگساز کو اٹھا کر آپ ڈرائیور بنا رہے ہیں؟ آپ غلط سمجھ رہی ہیں بیگم، آپ نے ہمیشہ مجھے غلط سمجھا۔ میں اتنا اچھا انسان نہیں ہوں جتنا آپ تصور کر رہی ہیں۔ میں ایک کاروباری آدمی ہوں، اپنا فائدہ پہلے دیکھتا ہوں۔ ذرا مجھے بھی تو سمجھائیں۔ وہ ایک بے حد ایماندار آدمی ہے۔ ہاں، جس نے ہم پر احسان کیا ہو وہ بیمار تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ ایٹ آل۔ دہاڑی میں کاریگر مال خریدنے میں اور کام کرنے میں اکثر ڈنڈی مارتے ہیں۔ تم نے یہ نوٹ کیا ہے کہ صرف 12 دن کے اندر اس نے پورا بنگلہ نمٹا دیا؟ 5 بجے کے بجائے 7 بجے تک اس نے کام کیا ہے۔ نہ صرف اس کی سپیڈ تیز ہے، اس کے ہاتھ میں بھی صفائی ہے۔ یہ سب کچھ اس نے تمہیں پھانسنے کے لیے کیا ہے، آپ کیوں نہیں سمجھتے اس بات کو؟ گمان ہے آپ کا، دوسرے کاریگر مال پرچیز کرنے میں زیادہ پیسوں کی رسیدیں بناتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، اور اسی الہی بخش نے 400 روپے کا پینٹ کا ڈبہ 380 روپے میں پرچیز کیا ہے۔ اس سے ہمیں تقریباً 900 روپے کا فائدہ ہوا ہے۔ کیسے قصیدے کہتے ہیں، آپ کو تو کسی بادشاہ کے دربار میں ہونا چاہیے تھا۔ صرف 900 روپے کی خاطر ایک فٹ پاتھی رنگساز کو اٹھا کر ڈرائیور بنا رہے ہیں، کمال کی بات ہے۔ وہ ڈرائیور ہے اور لائسنس بھی ہے اس کے پاس۔ میں کل ہی اس کی ٹرائی لے رہا ہوں۔ میں آپ کو بتا ہی دے رہی ہوں، میں اسے گوارا نہیں کروں گی۔ دیکھو، شادی کے لیے میں ایسا ہی ڈرائیور رکھوں گا جو قابل اعتبار ہو۔ مجھے اس پر اعتبار نہیں، وہ مجھے چالاک اور مکار لگتا ہے۔ آپ اسے نہیں رکھیں گے، یہ میرا فیصلہ ہے۔ دیکھو بیگم، تمہاری اور ہماری کبھی نہیں بنی۔ مجھ میں برداشت کا مادہ کم تھا اور تمہارے اندر سرکشی بہت زیادہ۔ بس صرف بچوں کی خاطر ہم اکٹھے رہے ہیں۔ اب مزید میرے صبر کا امتحان نہ لو، نقصان میں رہو گی۔ میری طرف سے وہ جانور میں جائے۔
किस्मत। ड्राइविंग सीखने के बाद आज पहली बार ये कार चलाऊंगा। ये लो चाबियां लाए बख्श। कहाँ चलना सर? ड्राइविंग का टेस्ट लेने तुम्हारे। चलो। अरे नहीं लाए बख्श, पीछे नहीं, मैं आगे बैठूंगा। शुक्रिया। तुम तो उसी वक्त पास हो गए थे जब तुमने गाड़ी स्टार्ट की थी। सुबह 7:30 बजे शादी को कॉलेज जाना है, तुम तैयार रहना जी। कल से तुम्हारी ड्यूटी शुरू। ठीक है। गुड लक। ड्राइवर तुम तैयार हो? इसके लिए यूनिफॉर्म का बंदोबस्त भी करना है। कम से कम ड्राइवर तो नजर आए। शादी चाहेगी तो यूनिफॉर्म का बंदोबस्त भी हो जाएगा। मामा प्लीज, मैं तमाशा नहीं बनना चाहती। लो बेटा, इसमें तमाशे की क्या बात है? इससे तो इंसान की शान का पता चलता है। मुझे ऐसी शान नहीं चाहिए। सुनो, गाड़ी जरा एहतियात से चलाना। पता नहीं गाड़ी चलानी आती भी है या नहीं। मैं ट्राई ले चुका हूँ। पता नहीं आपको क्या हो गया है, एक पेंटर को उठाकर ड्राइवर बना दिया। सर, बेगम साहबा अगर What are you worried about? It's very risky. It's a new car. मेरे लिए अपनी बेटी एक नई कार से ज्यादा अहम है। I am fully satisfied. आप सिर्फ एक एहसान उतारने के खातिर। बस रुखसाना बेगम, मैं एक लफ्ज भी आगे नहीं सुनूंगा। आप ही जाने, खुद ही भुगतेंगे। बेटी तुम जाओ, खुदा हाफिज। बेगम साहिबा की बातों को माइंड न करना इलाही बख्श। आई एम सॉरी। मैं क्यों माइंड करूंगा सर, मैं तो बेहैसियत आदमी हूँ। मैं ये कह रहा था कि रास्ता बताती रहे। हम तो गलत जा रहे हैं। मुझे तो पता ही नहीं है। असल में जाना कहाँ? गलती तो मेरी है, तुम्हारी जब नहीं तो मुझे करनी है। अब खैर छोड़ो, ऐसा करो कि यहाँ से राइट ले लो। आगे वक्त से पहले आ गई थी, तुम्हें तमाम रास्ते समझा दूंगी।
आज मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है। मैं इसे कभी नहीं भूलूंगी। क्यों बीवी? आज मुझे जिंदगी में पहली बार अपनी गाड़ी मिली और तुमने ड्राइव की। ये मेरे लिए भी एजाज है। आज मैं बहुत खुश हूँ। जो चाह वो मिल गया। हर चीज फानी है, खुशी भी। आदमी को मनफी सोच नहीं रखनी चाहिए। ये मनफी नहीं, मुस्बत सोच है। खुशी के लम्हे गुजर जाए तो आदमी रंजीदा नहीं होता, बल्कि पहले से उसके लिए तैयार होता है। तुम तो बहुत गहरी बातें करते हो, काफी पढ़े लिखे लगते हो। जी, मैट्रिक भी मुश्किल से पास किया। यहाँ से लेफ्ट ले लो। ये मुझसे नहीं हो सकेगा। ठीक है, तुम अपनी बात भी रख लो और मेरी भी। सबसे खूबसूरत दिन है, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगी। क्यों बीवी? आज मुझे जिंदगी में पहली बार अपनी गाड़ी मिली और तुमने ड्राइव की। ये मेरे लिए भी एजाज है। आज मैं बहुत खुश हूँ। जो चाह वो मिल गया। हर चीज फानी है, खुशी भी। आदमी को मनफी सोच नहीं रखनी चाहिए। ये मनफी नहीं, मुस्बत सोच है। खुशी के लम्हे गुजर जाए तो आदमी रंजीदा नहीं होता, बल्कि पहले से उसके लिए तैयार होता है। तुम तो बहुत गहरी बातें करते हो, काफी पढ़े लिखे लगते हो। जी, मैट्रिक भी मुश्किल से पास किया। यहाँ से लेफ्ट ले लो। ये मुझसे नहीं हो सकेगा। ठीक है, तुम अपनी बात भी रख लो। ये मुझसे नहीं हो सकेगा। ठीक है, तुम अपनी बात भी रख लो और मेरी भी। तुम मुझे शादी भी कर लिया करो। हाँ, ये चीज। हाँ, पूछिए क्या बात है? शादी भी? ये हम कौन से इलाके में हैं? ये डिफेंस में है। मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें सब रास्ते समझा दूंगी। ठीक है, अब मैं चलूं? ओके, गुड बाय। करो यार, बस करो। हाजी लाई बख्श बहुत याद आ रहा। ये गले करामत, आज तो बिल्कुल बेसुरा हो गया है। जब से इलाई बख्श इधर से गया है हमारे सारे सुर खराब हो गए अल्लाह के फजल से। तो बिल्कुल सही अखमें,
बिल्कुल सही अखरा है। गुड मॉर्निंग इलाइबाश। गुड मॉर्निंग जी। तुम बैटरी मिरर में क्या देखते हो? कुछ भी नहीं सर जी। फिर भी कुछ तो देखते होगे। बस इत्तेफाक से नजर उठ जाती है सर जी, वरना मैं तो शीशे को देखता ही नहीं है। ये तो बहुत बुरी बात है। फिर तो तुम अच्छे ड्राइवर ना होगे। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। भाई शीशे का कोई मकसद, कोई मतलब तो होगा ना। ये डेकोरेशन के लिए तो नहीं है। जी, इससे ड्राइवर पीछे की ट्रैफिक देखता है और उस पर नजर रखता है। अच्छा, तो तुम पीछे ट्रैफिक पर नजर रखते हो? ये कैसे मुमकिन है कभी? पीछे की ट्रैफिक पर नजर ना रखूं तो एक्सीडेंट किसी वक्त भी हो सकता है। लेकिन जब मैंने पूछा कि तुम पीछे क्या देखते हो, तुमने कहा कुछ भी नहीं। वो जी सारी बीवी, उस वक्त मैं समझा ही नहीं था। मैं बस इतना कह रही थी लाइबस, इस शीशे को देखते रहा करो। अगर पीछे की ट्रैफिक पर नजर हो तो कोई हादसा नहीं होगा। गुड मॉर्निंग लाइबस। गुड मॉर्निंग। यहाँ आ जाओ। चाचा पीर बाके तो आगे छोड़ेगा तो पागल हो जाएगा तू। बोल ना। इलाही बस इसी बंगले में ड्राइवर लग गया जहाँ भी तुझे रंगीन काम करता है तो रहते भी वही है। और की लिखा है? और लिखा है कि पीर बख्श तुम्हारा बेटा, इलाही बख्श बिल्कुल मेरा बेटा है, तुम उसकी कोई गम फिक्र न करना, उसको मैं अपने बच्चों की तरह रखूंगा। चाचा पीर बख्श बच्चा तो नौकरी का लग गया, ये तो बड़ी खुशी की गल है ना।
मैं ये काफी अरसे से देख रहा हूं कि इस घर को रंग रोगन की सख्त जरूरत है। आप साफ क्यों नहीं कहते कि उस फुटपाथी रंगसाज का एहसान चुकाएंगे? ये तो बिल्कुल फिल्मी कहानी हो गया। मगर बख्शे, तूने हम लोगों को सताया बहुत है। हाँ यार, मजा तो जब आए जब तुझे उस बंगले में नौकरी मिल जाए। क्या बात कर रहे हैं साहब भाई? ये जो फुटपाथ है ना, इसे मैं नहीं छोड़ सकता। मैं तुम्हें ड्राइवर रखना चाहता हूँ। मुझ पे तो एहसान होगा सर। मैं तुम्हें 3000 रुपए माहवार तनख्वाह दूंगा। इसके अलावा खाना घर से मिलेगा और क्वार्टर भी। तुम्हें सिर्फ शादी की गाड़ी ड्राइव करनी होगी। मुझे उस पर एतबार नहीं, वो मुझे चालाक और बकार लगता है। आप उसे नहीं रखेंगे, ये मेरा फैसला है। बेगम साहबा, अगर What are you worried about? गलती तो मेरी है, तुम्हारी रहनुमाई तो मुझे करनी है। इलाही बस उसी बंगले में ड्राइवर लग गया है जहाँ पे चाचा रंगीन काम करता है और रहता भी वही है। नहीं बस, क्या बात है, आज बहुत चुप-चुप है? जी मैं पहले भी कब बोलता हूँ, लेकिन मुझसे तो बहुत बातें करते हैं। आप सवाल करती हैं, मैं जवाब देता हूँ। तो मुझसे मेरे बारे में क्यों नहीं पूछते? एहतराम तो तजस्सुस से रोकता है। एहतराम तो मैं भी तुम्हारा करती हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में बहुत तजस्सुस है। एक बात और है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने आधी बात पाली हो? लाइबा, तुम्हें फूल बहुत अच्छे लगते हैं। तुम फूलों से लफ्जों का काम लेते हो। फूल लफ्जों से बहुत बेहतर होते हैं। वो कैसे? फूल तो मुरझा जाते हैं। मगर फूलों की खुशबू इंसान हमेशा याद रखता है, इसलिए कि फूल हर हाल में सच्चे होते हैं। लफ्जों का बसे नहीं चलता, लफ्ज बासी, सुनने वाला और कहने वाला दोनों ही भूल जाते। अच्छा फलसफा है, लेकिन दुनिया में ऐसा कौन होगा जिसको फूल पसंद नहीं? आप है ना? मुझे तो फूल बहुत अच्छे लगते हैं, मगर अफसोस कि वो फूल तुमने खुद मुझे नहीं दिए। इसीलिए उन फूलों को रौंद कर चली गई। यकीन करो ड्राइवर, मुझे तो पता ही नहीं चला। मैं तो अपने ख्याल में उठकर चली गई। हाँ शायद। ओके, आई एम सॉरी। कोई काम नहीं करती हो जब मैं ना हूं यहाँ पे चलने। काम क्या करो अपना? चलो ये काटो सब्जियां।
रहते हैं, कुछ बच्ची का भी ख्याल रखा करें। अरे बुक तुमसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम क्या मेरे पीछे प्याला लेकर आई हो? जाओ अपना काम करो, दफा हो जाओ। इलाही बट, तुम बचपन में शरारती थे? नहीं साथी, शरारत तो मैंने कभी की नहीं। क्यों? शरारत की उम्र में मेरे कंधों पर बड़ा भारी बोझ रख दिया गया था। मुझे तो चलना ही दोगर था, शरारत क्या करता। तुम हंसते क्यों नहीं? शायद ही कभी हंसी आई ना मुझे। हाँ, दिल ही दिल में हंस लेता हूँ। क्यों? ये तो मुझे पता नहीं। शायद हंसते वो लोग हैं जो हल्के फुल्के होते हैं। मैं तो जिंदगी में हर लम्हे, हर पल लड़ता रहा हूँ। किससे लड़ते रहे और क्या बोझ था तुम पर? था एक बोझ, थी एक लड़ाई। अब भी लड़ते हो? नहीं, हथियार डाल दिए। तब क्यों नहीं हंसते? अब लड़ाई खत्म हो गई, मगर बोझ पड़ गया। ये उम्र भक्का है। मुझे नहीं बताओगे? नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं है, बता दूंगा। अच्छा ये बताओ कि मैट्रिक किस डिवीजन में पास कर रही है? मुझे शादी दीदी फर्स्ट डिवीजन आ गई थी। इलाही बट, तुम कोई भी बात फख्र से क्यों नहीं करते? बंदे में ऐसा क्या होता है जिस पर वो फख्र करे? तुम्हें इंतजार बहुत ज्यादा है। इंतजार कैसा? अपनी हकीकत जानता हूँ, याद रखता हूँ, अच्छी तरह आजिज हूँ। इतनी आजी नहीं है मुझमें। मुझे अहमदाबाद के बारे में कुछ बताओ। वो बहुत खूबसूरत शहर है सर। शहर तो सभी खूबसूरत होते हैं। अहमदाबाद जैसा शहर पूरी दुनिया में नहीं। ऐसी क्या खास बात है? एक तो वो फौज का शहर है, जिधर देखो दरख्त सब्जा, हर तरफ पहाड़ ही पहाड़, बर्फपोश चोटियां, नज़ारे ऐसे कि रूह ताज़ा हो जाए और हवा ऐसी साफ शफाफ के सीना रोशन हो जाए। मेरा तो जी चाहने लगा कि मैं अहमदाबाद देखूं। पर वहाँ सबके बावजूद जिंदगी आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। कैसे? वहाँ रोजगार का बहुत मसला है, इसलिए तो हम फुटपाथ की जिंदगी को अपने घर से ज्यादा तरजीह देते हैं। वहाँ की जिंदगी फुटपाथ की जिंदगी से भी ज्यादा रोमांटिक है। इलाही बट, तुम्हें उस दिन मेरी बात बुरी लगी? नहीं सारी दीदी, मुझे अच्छी लगी थी। मैंने सोचा अगर आप वो जिंदगी गुजारें तब भी आपको वो रोमांटिक लगेगी। बहुत मुश्किल सवाल है, शायद किसी दिन मैं तुम्हें इसका जवाब दे सकूं। मना लिखो। मैं खैरियत से हूँ। ये लिखवा दिया, आगे भी लिखवा।
देखो हमारे को रोजगार सही चल रहा है। बख्श मेरा दोस्त, खुदा का शुक्र है तुम आ गया अल्लाह के फजल से। अल्लाह तेरा शुक्र है। बहुत खुशी हुई बख्शू आपको देख। ठीक हो? अल्लाह का बिल्कुल क्या आओ बड़ा जान। और कैसे बख्शू? बैठो। रियाज, हाँ जल्दी जाओ, मेरा दोस्त आया है। सारा होटल से जितना सामान है लेकर आओ इसके लिए अल्लाह के फजल से। बस बड़ा ये और अभी आया। नहीं क्या क्यों तकलीफ कर रहे हो? इतने दिनों बाद आया है, हम जितना खुश है हमारा सारा दोस्त इतना खुश है। और सुना बख्शू, कैसे गुजर रही है? अच्छी गुजर रही है। बस यार तुम लोगों से मिलने को बात भी करना, तो ऐसी बातें करना, वो गम की बातें नहीं करना। बहुत दिल करता है तुम लोगों को, लेकिन क्या करूँ, नौकरी ऐसी है मेरी, वक्त नहीं मिलता। सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, खुदा का शुक्र है। जी सर, आपने मुझे बुलाया? अरे आओ इलाही बख्श, बैठो। मैं ठीक हूँ सर। इतना अरसा हो गया तुमसे मुलाकात नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई। अरे बैठो, हमारे साथ चाय पी के जाना। बैठो। जी सर, क्या हुक्म है? बहुत अरसा हुआ तुमसे कोई बात नहीं हुई। अरे बैठो भाई, तुम मेरे मुलाजिम नहीं हो। मुलाजिम तुम शादी के हो गए। ये बताओ काम ठीक चल रहा है? जी सर। कोई मसला हो, कोई शिकायत, मेरे पास सीधे चले आना बिला तकल्लुफ। नहीं सर, आपकी तो वैसे भी बहुत अनायत है मुझ पर। इलाही बख्श, वो गाड़ी सर्विस करानी थी। सर्विस स्टेशन तो मैंने तुमको दिखा दिया था। जी देखा हुआ है मैंने, मैं कल सर्विस के लिए ले जाऊंगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा अब चाय पियो। शादी बीबी, आज गाड़ी सर्विस के लिए लेके जाना। ठीक है, ले जाओ, 1 बजे ले आना। गुड बाय। निसार भाई, यार काम पाम तो है नहीं। मैं कल गांव जा रहा हूँ। अच्छा। अरे निसार भाई, खुदा का कसम है, हमारे घर में तो 4 दिन से राशन ही नहीं। अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम सलाम। जो आओ भाई, आज कैसे रास्ता भूल गए? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बस निसार भाई, वो गाड़ी मैंने सर्विस के लिए दी है, सोचा आप लोगों को मिलता चलो। अच्छा यार, गाड़ी आपने सर्विस में दे दी? देखो मौला देता है, सफर फाड़ के देता है, पर यार गाड़ी तुमने दिखाई दे नहीं हमारे को यार। अरे अब तो बड़ा आदमी बन गया तुम जवान, हमको भी दिखाओ ना गाड़ी। तो फिर ऐसा करता हूँ कि वापसी पे यहाँ से होता जाऊंगा, तुम लोग गाड़ी देख लेना। अरे यार छोड़ो इन बातों को, चाय पानी का तो उससे पूछ नहीं रहे हो, खा मखा बंदे से चिमट जाते हो। चलो साथ पहले चाय पी लेता हूँ। हाँ चाय साहब भाई मैं पिलाऊंगा आपको चाय। आज तो हमने खाना भी नहीं खाया। तो फिर इंतजार किस बात का है? चलो ना, खाने का टाइम भी हुआ, खाना खाते हैं चल के।
हाँ निसार भाई चलो ना, चलो। हाँ चलो साहब, चलो चलो खाना खा लेते हैं। चलो बिस्मिल्लाह। खाना खा लिया है तुम लोगों ने? सही तरह। हाँ बख्शी भाई जबरदस्त। अच्छा फिर तुम लोग चलो, मैं और निसार भाई आते हैं। बख्शी भाई को राजदारी की बात है क्या? हाँ ऐसे ठीक है, चलते हैं जो। हम चलते बाहर, आप आ जाओ। अच्छा नहीं, कोई खास बात है बख्शे? निसार भाई सच सच बताना नशा, जेब खाली है ना? हाँ फिर आप ही ने मुझे सिखाया था कि भाई को भाई से मदद लेने में शर्म नहीं करनी चाहिए, याद है ना? हाँ याद है, लेकिन तूने मुझसे कहाँ सीखा था, बल्कि उल्टा मुझे ही सिखा दिया कुछ और। निसार भाई ये रख ले। नहीं ये नहीं हो सकता। सुनो निसार भाई। निसार भाई, वो निसार भाई जल्दी करो, काम आ गया, गरीबी का काम है। देखा देखा तुमने, अल्लाह ने कैसी इज्जत रखी मेरी, जैसे उस दिन तेरी इज्जत रखी थी। चलता हूँ। अच्छा निसार भाई, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ, मैं मिलके जाऊंगा। करमू, ओ करमू, करमू, ये लाई बख्श का है? वो तो जी गड्डी की सर्विस कराने वास्ते गए। सर्विस? अच्छा ठीक है, तुम अपना काम करो। क्या जरूरत पड़ी थी उसको बोलने की कि मैंने खाना नहीं खाया? साहब खुदा कसम सुबह से हमने कुछ नहीं खाया था। कुछ नहीं, सबर नहीं कर सकता था। गलती हो गया, अब बेइज्जती करवा दी तूने। भूखा है, भूखा, सबर नहीं किया है तूने, बेइज्जती करा दी तूने। तो सब हमारे पीछे पड़ गए। अरे निसार भाई, अरे अपना बख्शी भाई आया नहीं? अरे निसार भाई वो गाड़ी लेके आया। हाँ गाड़ी लेके आया अपने लिए। अरे वाह, गाड़ी लेके आया। अरे वाह, हमें तो कर सकते? क्यों नहीं, लेकिन ऐसा करता हूँ कि मैं कल आऊंगा और खूब घुमाऊंगा। नहीं बच्चे भाई, अब भी बता दो ना, पूरी कराची का सैर कराओ हमको। साईं बच्चा ना बन, तू जानता है इलाही बख्श कितना ईमानदार आदमी है, अपने साहब की इजाजत के बगैर तुझे बिठा नहीं सकता। अरे खुदा कसम बख्शे भाई, गाड़ी तो एकदम अनारकली रखा है नहीं तुमने, बम्पाट है बम्पाट। लेकिन अरे बख्शे भाई, कल तो हम काम पे चला जाएगा, काम मिल गया तो फिर नहीं ना, मैं ऐसा करूंगा कि मैं रोज चक्कर लगाऊंगा। जिस दिन तुम लोग यहाँ फारग मिले, मैं पूरा कराची घुमाऊंगा। वादा? हाँ हाँ वादा। चलो फिर ठीक है। अरे बख्शे तुझे अल्लाह खुश रखे यार, तू जब भी आता है ना तो दिल खुश कर जाता है। अच्छा निसार भाई, अब मैं चलता। अच्छा अल्लाह हाफिज, फिर मिलेंगे। अच्छा बख्शे भाई, देखो मौलाना क्या सफर फाड़ के आपको दिया है। वाह 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 वाह, हमको वाला दिया देगा। बैठो 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 बैठो। आए हैं, वाह वाह। अरे वाह वाह, अल्लाह ने किस्मत खोल दी इसकी तो यार। वाह वाह, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मौला देता है, छप्पर फाड़ के ऐसे देता है, और हम लोग को मौला ही देगा। साईं मेहनत करो, इंशाल्लाह हमें भी ऐसे मिलेगा।
कब मिलेगा? मिलेगा मिलेगा, अल्लाह देगा। दिल छोटा नहीं करो अपना। इलाही बख्श, तुम भी अपनी बीवी के साथ कभी नहीं बैठ सकोगे। सर बीवी, आदमी रिवाज तो नहीं तोड़ सकता। इलाही बख्श, अगर तुम्हारी शादी किसी शहरी लड़की से हो गई तो? तुमने जवाब नहीं दिया। ऐसा कैसे हो सकता है सर? हो क्यों नहीं सकता? कहते हैं जोड़े तो आसमानों पर बनते हैं। वो तो ठीक है, मगर मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बस मेरा दिल कहता है। अच्छा, फर्ज करो अगर ऐसा हो जाए तो? जी, तो फिर उस लड़की को देहाती बनाना पड़ेगा। हालांकि मेरे ख्याल में उसके लिए तुम्हें शहरी बन जाना चाहिए। वो क्यों शादी? देहाती के लिए शहरी बनना आसान है, लेकिन शहरी के लिए देहाती बनना मुश्किल। ख्वाहिश हो तो कुछ मुश्किल नहीं, ना हो तो नहीं मुश्किल। सोचते रहेगा अगर तुम शहरी बन जाओ तो कैसे लगोगे? मैं शहरी कैसे लगूंगा? मैं बनूंगा ही नहीं। शादी बीवी, कहो। वो घबरा क्यों रहे हो? कहो ना। वो फुटपाथ वाले मेरे दोस्त है ना, वो उन्होंने कल गाड़ी देखी थी। तो फिर? कुछ नहीं शादी बीवी, रहने देंगे। नहीं बस, बात मुकम्मल किया करो। वो असल में मेरे दोस्त गाड़ी में बैठना चाहते थे। शादी बीवी, कल तो मैंने इनकार कर दिया, लेकिन मेरा दिल बहुत दुखा था। बहुत बुरा किया। बिठा लेते। कैसे बिठा देता आपकी इजाजत के बगैर? ये तो बेईमानी हुई ना। बेईमानी कैसी? मैंने तुम्हें इजाजत दे दी। सारी बीवी, आज मैंने उनसे वादा किया कि गाड़ी में बिठा के खूब सैर कराऊंगा। मैंने तो तुम्हें पहले इजाजत दे दी है ना। शुक्रिया सारी बीवी। शाम को अगर देर हो गई तो